also have voting which is happening in Himachal. Remember, even as Himachal votes, the Chief Minister Suku has gone ahead and made an allegation that over the last 14 months since there was a Himachal government, the new Himachal government elected, BJP has tried hard to topple the government, but the government will continue and has asked people to exercise their vote. BJP, of course, has completely rubbished these allegations, but you have, of course, the Chief Minister who's casting his vote. You have Kangana Ranaut as well as Vikramaditya who are there facing off in a very high-profile battle where a celebrity has entered politics, and you, of course, have a royalty that's also in fray. Let's just listen in to the reactions. जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया, लोग इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को पसंद नहीं करते। भविष्य में अगर हिमाचल की राजनीति को साफ सुथरा रखना है तो ये चुनाव जनता को लड़ना पड़ेगा, और ये चुनाव जनता का है। हमारी सरकार को 3.5 साल है, हम ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य की राजनीति हिमाचल की कैसी हो उसकी दिशा और दशा तय करने के लिए चुनाव है। मैंने जो है वो वोट दिया है, और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल वर्ड वॉर्स बीच में चले और कैंपेनिंग ताबड़तोड़ जनसभा कंगना ने की, विक्रमादित्य ने की, रैलीज की गई। लेकिन आज की अगर हम बात करें, वोटर्स से हमने बातचीत की तो वोटर्स का साफ तौर पे कहना है कि हम जो है विकास के नाम पे वोट करेंगे, और यूथ को जो है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और आप कंगना के जो चेहरे पे जब वो वोट कर रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी दिख रहा था। आपको ये भी बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस लेवल कहें, क्योंकि उन्होंने अपना सांसद कार्यालय भी खोल दिया है और अभी उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया, पूजा उन्होंने की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय जो उन्होंने खोला है सांसद कार्यालय है, और अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, वो आने वाला वक्त बताएंगे। 4 जून को फैसला होगा कि किसकी जीत होती है किसकी हार, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कंगना का अभी पूरा है, वो उनका जीत के लिए वो पूरी तरह निश्चित है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह जो है लोगों का प्यार उन्हें मिला, और जहां जहां वो गई, सारी जहां भी जिस भी जगह वो गई, एरिया में गई, वहां विजिट उन्होंने किया तो लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला। तो उसी के वो निश्चित है कि उनकी जीत जो है वो पक्का है। You have cast the vote. You are seeking the 5th term. How confident you are this time? I'm very confident. In the past also, the electoral, they have voted, supported, and made us win all the 4 elections. Also this time, I'm very hopeful the kind of support we've been getting. It's a very positive atmosphere, and I'm glad not only for me, but for the entire country. If you look at the past 6 phases, it has went off well. In the 7th phase, we are expecting a larger turnout for a bigger margins, and I'm sure people, if you look at the line, they are standing in a queue and waiting to cast their vote, which is a good sign that people are coming out in large numbers to cast their vote. How do you see the Congress exiting from the exit poll coming today? That means they are accepting the defeat in advance, and I'm sure they're gonna blame it on other things like EVM or Election Commission or other political parties or the Modi's glamour. I don't know what they're gonna do, but they're still waiting to find a reason to go in front of the cameras and accept their defeat. There's a big jolt for INDA bloc. They are going to have a meeting today where they will be discussing their future strategy. They will be discussing about EVM. But Trinamool Congress Chief Minister Mamata Banerjee of the West Bengal, she's not taking part. You think that somewhere there is a friction between the INDA bloc and a jolt for them? They were never together. They came on a platform because most of them either were in the jail or on the bail, and they had nothing in common. Neither ideology, nor the leadership, or the future
planning for the country. There was no common minimum program. So I think it never stood. I mean, like they were working in different areas. They never got together. The main person behind it was Nitish Kumar, who also left the Indy coalition much ahead of the polls. So I think it's a clear sign that just for the sake of calling it a coalition, they were there, but there was no alliance at all. सर कैसे देखते हैं आप ये कि अभी कांग्रेस की तरफ से एक फरमान आया है कि भाई आप एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, कांग्रेस के नेताओं से कहा गया, तो कैसे देखते हैं ये एग्जिट करना एग्जिट पोल से? उनके पास चारा ही नहीं है। पिछले 2 महीने से लगातार झूठ प्रचार कर रहे थे। अब सत्य सामने आएगा एग्जिट पोल से और अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट से, तो फेस करें ना एग्जिट पोल की डिस्कशन को फेस कर पाएंगे और ना ही बाद में चुनाव परिणाम को। कहते हैं कि सनातन धर्मी हो के अगर धर्म का पालन ना कर पाए, जैसे प्रधानमंत्री को लेके कहा जा रहा है कि मेडिटेशन पे जा रहे हैं और उस पे देखिए किस तरीके से एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कोई कहता है ये मेडिटेशन नहीं है, ये मीडिया टेंशन है। कोई कहता है कि ये वोट के लिए है, कोई कहता है ये लास्ट फेज में इलेक्शन क्योंकि उनको हार दिख रही है। ऐसे आप कैसे देखते हैं? डबल स्टैंडर्ड इनका रहा है मेरे द्वारा मापदंड। मैं पूछना चाहता हूँ, कल मोदी जी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे तो प्रियंका गांधी अपनी बेटी को साथ लेकर शिमला के जाखू मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में वो क्या करने गई थी? तुम करो तो पूजा, हम करें तो लीला। नहीं, इनको तो मोदी की आलोचना करेंगे, कुछ भी करेंगे आलोचना करेंगे। इनको तो हर चीज़ नेगेटिव देखनी है।